welcome to Neat with Nene Season 1 Episode 4. Hope so you all are enjoying my show. So my next guest is a mountaineer, but beside this she is a mainstream interior architect. A very quiet and simple girl with lots of hidden talent. She loves trekking, traveling, photography and more. Shweta is an adventurous girl who keeps a very low profile. But being a camera conscious, she made her best in the show. So let's find out more about Shweta and mountaineering. Please welcome Shweta Talukde. Hello Shweta, how are you? Hi Neha, I'm good. How are you? I'm great. So what are you doing? Abhi, I'm spending time with my family. As you know, I was in Bombay for 5 years for Yes. my higher studies, and now I'm watching series, cinema, and working on my portfolio. I participated in design competition. Wow. ये जो अभी लॉकडाउन में चालू था नया नया कॉम्पिटिशन्स लाइक ड्राइंग कॉम्पिटिशन एंड Interior design competition. it is on Instagram, right? Yeah. Okay. So did you get selected? Oh, the results are yet to come. Okay, great. Congratulations. So what else did you मतलब ये लॉकडाउन में क्वारंटीन में क्या किया? काफी बोर नहीं हो गई? बोल सकते हैं बट काफी प्रोज एंड कॉन्स है फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो ऐसा टाइम बार बार नहीं आएगा कि सारे लोग घर पे एक साथ है जैसे कि मेरे पापा ही इज अ बिजनेस पर्सन सो मोस्ट ऑफ द टाइम डे में ही इज आउट तो अभी मैं भी नहीं थी घर पे तो वी आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर या इट्स गुड ये डिजिटल टाइम में तो ये काफी लोगों को अच्छा लग रहा रहेगा इसे फैमिली टाइम स्पेंड करने मिल रहा है अदरवाइज एवरीवन वाज बिजी विद देयर वर्क एंड ऑल राइट ओके यस so Shweta, I know that you have done a mountaineering course right यस तो प्लीज उसके बारे में हमको बताओ जरा लाइक कैसे तुमने सोचा कि हम मुझे माउंटेनियरिंग कोर्स करना है एंड क्या क्या था उसमें लाइक सम क्राइटेरिया एग्जाम्स एंड ऑल और फिर कैसे मजा आया कि नहीं Okay, so when I was a kid, I used to go to Himalayas with my parents for family vacations in the summers. So वहाँ पे हम लोग विलेज टूर्स करा करते थे लोकल गाइड्स के साथ तो जब मैं एक बार उत्तराखंड गई हुई थी वहाँ से वी सॉ नंदा देवी माउंटेन रेंज एंड आई आस्क्ड दैट गाइड कि यहाँ पे जाने के लिए कैसे जाते हैं so he told me you have to get training from the mountaineering institutes you have to climb few mountains and then you can go तब से I started searching on Google कि ये courses कौन से है ये institute कौन से है जो training देते हैं then I came up with this Jawahar Institute of Mountaineering जो basic course के लिए मैं गई थी 2016 में it was in Kashmir तो and ऐसे कुछ इसके लिए क्राइटेरिया रहता है क्या लाइक एक पर्टिकुलर एज में ही हम जा सकते हैं कि तुम कभी भी जा सकते नो ना बिकॉज इट्स क्वाइट रिस्की फॉर चिल्ड्रन yes 18 years से ज्यादा एज होनी चाहिए you have to be physically fit and वो प्लेस बुक करने के लिए यू हैव टू साइन अप बिफोर एन ईयर बिकॉज काफी सारे लोग अप्लाई करते हैं और सिविलियंस के लिए ट्रेनिंग 1 साल में और 2 महीने तक होती है मतलब 2 बैचेस में सो इट्स क्वाइट कॉम्पिटिटिव आल्सो और श्वेता ऐसा कुछ है कि पर्टिकुलर सीजन्स में ही जा सकते हैं या ऑल ओवर द ईयर हम कभी भी जा सकते हैं सो द ट्रेनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मार्च एंड गोज टिल जुलाई और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स पे टाइम स्लॉट्स दिए हुए हैं वो डिपेंड करता है अच्छा वी ना हैव टू चेक दैट वेकेशन पीरियड में रहता है तो फिर बच्चे मतलब हम लोग भी एंजॉय कर सकते हैं ऐसे डेली हाँ खराब नहीं होगा यस That's nice. सो मैंने बेसिक कोर्स जवाहर इंस्टीट्यूट से किया है इट इज इन कश्मीर और आवर कैंप साइट वाज इन गुलमर्ग एंड वी स्टेड इन टेंट्स फॉर लाइक 1 month एंड ट्रेनिंग का शेड्यूल ऐसा होता है कि you get up in the morning at 6 a.m. and then you do your PT training, basically running and exercises, all of that. Then your breakfast, then you go for your training thing, which goes till 3-4 p.m. in the afternoon. And uske baad theory lectures are there because end में एक exam भी होती है written exam to qualify the course. Eventually you get the certificate for the course.
And when you get like A grade, you are eligible to do next course, advanced course या ऐसा कुछ भी हो. So people pursue mountaineering as a full-time career also. So these courses are very important for them. जैसे कि ट्रैक गाइड है, ट्रैक लीडर्स है, या तो टूर गाइड्स जो है, वो लोग ये कोर्सेज करते हैं. Trekking, mountaineering and hiking, they all are same. There is some difference between them. So they are different. Hiking मतलब काफी बेसिक होता है जो कोई भी कर सकता है. इसके लिए किसी मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं होती. नहीं. हाइकिंग में हम ऐसे ही जा सकते हैं, बट इन माउंटेनियरिंग जा सकते हैं. ऑल लाइक यू हैव टू लाइक टेक ट्रेनिंग, जिसमें हमें इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, टेक्निक सीखने पड़ते हैं, उसको हम माउंटेनियरिंग बोलते हैं. जैसे कि कोई रॉक फेस हो 90 डिग्री, वो हमें चढ़ना है, तो यू नीड टू नो द रॉक क्लाइंबिंग टेक्निक्स एंड यू नीड इक्विपमेंट्स, सो वी कॉल दैट एज अ माउंटेनियरिंग. एंड ट्रैक्स आर लाइक चलते हैं, वो ट्रैक्स भी डिफिकल्ट होते हैं, बट उसमें तुम्हें कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है. जैसे माउंट एवरेस्ट हुआ, दैट इज एक्सपीडिशन. वैसे काफी सारे बड़े बड़े पीक्स है, उसको हम एक्सपीडिशन बोलते हैं. तो फिर वहां पे ऐसे 1 महीने तक वो कोर्स किया, तो डेली तुम्हें ऐसे लेके जाते थे ऊपर की? कोर्स में ट्रेनिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी. वन वाज रॉक क्लाइंबिंग, द अदर इज आइस एंड स्नो क्राफ्ट. एंड इनमें 2 ट्रैक्स हुए थे. उसके बाद यू हैव दिस थियोरी एग्जाम एंड देन कॉन्वोकेशन सेरेमनी. Rock climbing is basically rock training, and we got trained on Hawes Rock. So Hawes is a high altitude warfare school, जिसके साथ जवाहर इंस्टीट्यूट का टाई अप है. और वहाँ पे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की जो पोस्टिंग होती है हिमालयाज में, उनको ट्रेन करते हैं. तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हुई. फिर स्नो एंड आइस क्राफ्ट हमने गुलमर्ग के ग्लेशियर में किया. फिर हमारे 2 ट्रेक्स हुए लोकली गुलमर्ग में. उसके बाद इट वाज फन. यहाँ से मैं अकेले गई थी, और फिर मैंने वहाँ पे काफी सारे फ्रेंड्स बनाए जो डिफरेंट बैकग्राउंड से थे. सो इट वाज 90 पीपल इन माय बैच. उसमें से 9 वर गर्ल्स एंड बाकी सारे बॉयज थे. और काफी सारे लोग आर्मी से आए हुए थे ट्रेनिंग लेने के लिए. काफी सारे लोग एडवेंचर में फुल टाइम काम करते थे. हाँ, तो इसलिए आए होंगे वो लोग. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था फिर? लर्निंग आउटकम्स काफी थे. एंड जब भी मैं गई थी इन 2016, द उरी अटैक हैपेंड. So the entire Kashmir was curfewed for like 4-5 months, and that started when I touched down in Srinagar. So there was no contact with my family or like close friends. I used to speak with them like in 10 days, satellite phone use करके. तो ऐसे कुछ बुरा लगता था क्या, मैं यहाँ पे आ गई और अभी उरी अटैक भी हुआ है, कुछ हो गया तो? So basically the entire training used to feel like hell in heaven. Because it was very tough. हमें आदत नहीं होती है ये सब चीजों की. Okay, so you cleared your basic course? Yeah, I got the A grade in that. Then उसके बाद तो ऐसे क्राइटेरिया रहता है क्या कि हमें A grade ही लाना है, then we can pursue for advanced course? Yeah, that's the criteria. With B and C grade, you cannot proceed for further courses. So you got A grade, right? Yeah, I got A grade. And when you do these courses, you get registered with IMF, Indian Mountaineering Foundation, which is in Delhi. And before climbing any peak, which is 6,000 meter से जो भी बड़ा है, तो तभी हमें परमिट्स लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट से, जो ये IMF है वहाँ से. तब दे चेक योर रिकॉर्ड्स कि आपने कौन से कोर्स करे हैं, कौन सा ग्रेड लाया है. डिपेंड्स ऑन दैट आल्सो. तभी वो लोग आपको अलाउ करेंगे, राइट? It depends. But advanced course के लिए तो you have to get A grade in basic. Okay. So you did advanced course also, right? Yeah. So in 2018, I did my advanced course from NIM, Nehru Institute of Mountaineering, which is Asia's best mountaineering school.
वहाँ पे यू हैव टू वेट फॉर लाइक 2 years और सो, क्योंकि सीट्स काफी बुक होते हैं ऑलरेडी, एंड वहाँ पे जाना भी काफी कॉम्पिटिटिव है. सो तो 2016 में बेसिक कोर्स करके व्हेन यू गॉट ए ग्रेड तो तूने एडवांस के लिए भी अप्लाई किया एंड अप्लाई कर दिया. इट या टुक यू 2 years इसलिए 2018 में यू डिड योर. या ओके ओके. सो एडवांस कोर्स में ट्रेनिंग सिमिलर ही होती है. फॉर 7 days इट वाज रॉक क्लाइंबिंग. Then the other 20 days are expedition. We climbed Mount Draupadika Danda 2, which is in Gangotri region. So it was a 20-day expedition. We used to climb like every day and stay in one camp. Afternoon के बाद वहाँ पे फिर से ट्रेनिंग होती थी, थियोरी लेक्चर्स होते थे, और एंड प्ले टाइम भी दिया जाता था कि यू कैन प्ले एनी गेम्स इवनिंग में वगैरह. And you have your dinner and chit chat, sleep by like 8:39 because कुछ है ही नहीं करने के लिए. Then you get up in the morning at 6 o'clock, pack your tents, carry your luggage. और हाँ, हमारा लगेज 20 kg का हुआ करता था जो हम हमारे बैग्स में लेते थे. वो सारे इक्विपमेंट्स ही थे. So 20 days तक we didn't take bath. हाँ, सबने. And no one is thinking that, sorry, this is a weird question, but No. High altitudes में you don't, क्योंकि इतनी ठंड होती है and you are wearing layers of clothes already. So there are several camps till you reach the summit. When you go to base camp, वहाँ पे you stay for like 4-5 days, जहाँ पे you get satellite phones and you can finally contact your family. And base camp से आगे tree line खत्म होती है. Only scree, snow and ice is there. So उसके आगे जब जाते हो तो base camp के आगे होता है advanced base camp. So you go, you carry your half luggage. वहाँ पे आप tents pitch करके वो सामान रख के फिर से base camp पे आते हो, so that your body acclimatizes to that altitude. And then again next day you go to the same camp, then do your training, then you move to other camp, then come back and then go again to that camp. okay. So it's quite Yeah. interesting and adventurous, right? Yeah. So advanced base camp के था आगे camp 1. जब हम camp 1 पे गए तब वहाँ से आगे का point was summit. So we started doing our trek at 2 a.m. in the night, midnight basically, because that is favorable time to climb, क्योंकि snow जो है दिन में वो melt होता है, तो you cannot climb favorably. So 2 a.m. in the night we started, and 9 a.m. in the morning we summited the peak. Then again the same journey, stay on those camps and come back. Okay. फिर भी काफी जल्दी हो गया था ना, like 2 AM, then 9 बजे तक तुम लोग पहुंच भी गए थे. हाँ, कैंप 1 समिट से काफी पास में होता है. वैसे लास्ट का कैंप जो होता है वो समिट पॉइंट से काफी पास में होता है. तो एडवांस कैंप में लोग थे, आई मीन कितने गर्ल्स बॉयज, क्राउड कितना था? बॉयज की बैच नहीं थी. We were 40 girls, out of which I guess 32 people submitted the peak. 0 और 32 40 और 14 girls, 40 और 14 40 40 girls. Wow. 40 girls were there, and out of which 32 people submitted the peak. बाकी के उनको कुछ हुआ था बीच में. They get sick because high altitude में body सबकी similar respond नहीं कर पाती. So तो उन्होंने वहीं पे ड्रॉप कर दिया था and they went their home, कि वहीं पे कैंप में उन्हें स्टे. they stayed on those camps. And after this expedition we went to NIM again, the institute campus area. फिर वहाँ पे हमारी theory test हुई, फिर same convocation ceremony हुई. And then थियरी पार्ट में क्या होता था श्वेता? Like what theory, जब हम क्लाइंब करते हैं ना, क्लाइंब करने की भी डिफरेंट टेक्निक्स होती है, तो उनके नाम अलग अलग है. फिर वो करते हुए कौन सी इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हो. इक्विपमेंट्स गेट अपडेटेड ईच ईयर, सो यू हैव टू स्टे अपडेटेड.
और उसके साथ भी फिर वही सब सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए जब एवेलांच आती है क्लाइंब करते टाइम, तो कैसे सरवाइव करना है, ये सब सब सिखाते हैं। कितने मार्क्स का होता था रिटन टेस्ट? और रिटन टेस्ट आई गेस 50। उसमें से कितना यू हैव टू ब्रिंग, मतलब कितना 50 आउट ऑफ कितना लाना पड़ेगा तो यू कैन क्लियर दैट एग्जाम? 40+। सो उसमें भी ऐसा होता है कि यू हैव टू मेक अ एक्सपेडिशन फाइल, जैसा मैंने बोला, आप कोई पीक सबमिट करते हो तब यू हैव टू टेक परमिशंस फ्रॉम IMF, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। देन वो पीक कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, जैसे हमने जो क्लाइंब करा था वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता था। फिर वहाँ के लोकल जो कलेक्टर है उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। वेदर फोरकास्ट हमें चाहिए होता है वेदर डिपार्टमेंट से, तो उनको हमें लेटर देना पड़ता है कि मैं ये पीक ये टाइम में सबमिट करने वाली हूँ, तो आई नीड रिपोर्ट्स फ्रॉम यू गाइस। तो ये सब करने के लिए एक फाइल बनती है, और फिर कितना राशन कैरी करना पड़ेगा, कौन से इक्विपमेंट्स लेके जा रहे हो, वो सब की फाइल जो बनती है वो भी हमें बनानी पड़ती है, विच इज पार्ट ऑफ थ्योरी। ओके, वाओ, नाइस। तो महाराष्ट्र के कौन से माउंटेन्स यू क्लाइंब? महाराष्ट्र के आई क्लाइम्ड 35 फोर्ट्स आउट ऑफ अराउंड 365। ओके ओके, आई डोंट नो दिस 365 आल्सो। उसमें से तूने 32 कर भी लिए, तो आई जस्ट प्लीज यू के नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर गोइंग प्लीज टेक मी आल्सो। Yeah, sure, एक sure. सिंगल फोर्ट नहीं चढ़ा रहेगा अभी तक, बिकॉज आई एम जस्ट स्कैर्ड ऑफ हाइट्स, बट आई कैन डू विद Okay, we can surely. योर इमेजेस कि तुम लोग काफी एंजॉय करते हो। Yes. तू रहेगी साथ में तो मुझे नहीं लगता डर लगेगा। Are you can come anytime. So Shweta, now let's come to the fashion. Okay. Okay. So what's your opinion for fashion? Like what you think about fashion? Is that important in your life, or it's okay, you can wear anything? It literally depends on my mood, but डेली के लिए तो मुझे कंफर्टेबल होना चाहिए, ये मेरा मोटो है। बट एंड विंटर वेयर इज माय फेवरेट। And you know, I'm interior designer, and we like explore places. We like every year we go to Rajasthan. Yes. तो वहाँ पे I want to ask you that कि तुम लोग राजस्थान ही क्यों जाते हो, और भी जगह घूमो। फिर दिस टाइम आई सॉ योर पिक्स ऑफ कच्छ, तो मैंने सोचा चलो अभी इनने चेंजेस लाना स्टार्ट किया, अभी ये लोग दूसरे दूसरे जगह पे जा रहे हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ योर ट्रिप्स आर जयपुर, राजस्थान। वो तो वहाँ से काफी इंस्पिरेशन मिलती है। नहीं, एक बार तो शायद पर्ल वालों की तरफ से तुम लोग गए थे, राइट, कॉलेज के थ्रू? Yes, I went to Udaipur for my friends' brother's wedding, and then we went to Jodhpur, Pushkar, and Ajmer. राजस्थान पूरा घूम लिया है लग रहा है। So about fashion, that was I'm saying. I like to pick up local clothes जो कि famous है, and then I pair them with my formals, or it's like a hippie style, and I really like to go with that because you can wear them here when you are here, like for office or for college base. तो यू कांट, तो वहाँ पे जाके मेरे को काफी फन लगता है वो एनवायरमेंट से अडॉप्ट करके। मुंबई यू आर में तो वेयरिंग यू दोस मोस्टली कांट वेयर हिppie clothes because people start नो यू कांट। you have to be very professional here, भले जॉब पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, wherever you're going. In formal settings you can't because your profession is like, you know, people are all dolled up in formal outfits. Yes. Uh, so Shweta, my next question is what change you want to see and what change you want to bring around your surrounding? मतलब क्या ऐसा है जो तुमको लगता है कि इसमें चेंज आना चाहिए, या तुम ऐसा कुछ चेंज लाना चाहते हो? Okay, so there are a lot of things, but as you know, I'm already a designer and I'm doing things in architectural background, and I've been hiking to this fort
I see a lot of temple and Maharashtrian heritage, and most of our forts are on hillsides. And like I told you, there are 365 forts which are not in good condition. And I really wanted to do something for that. It's not my Agelika work, but I want to contribute in that for the conservation part and development part. Okay. You want to do something Yes. for development of Maharashtra, right? Port of For heritage structure. Yeah. Okay. Yeah, I have seen your that तुम लोग Thesis. नहीं वो जो पोर्टफोलियो का कुछ तो फंक्शन था दैट I That was final design project that I did in yeah what was that project? So that was adaptive reuse of Maharashtrian Vada. Maharashtrian Vada is a traditional mansion in Maharashtra. Then उसके साथ मैंने उसको commercially develop किया था. Yes, I have seen it. Oh, suddenly याद आया जब तूने बोला ना कि मुझे ऐसे changes हाँ. फिर मुझे याद आया कि उसी के टॉपिक पे तूने अपना प्रोजेक्ट किया था उस टाइम. Yes. For now, that is target. आगे का पता नहीं. So I go for these hikes and mountaineering things, and I meet local people, but they are not that exposed to good education or technology. Yes. So I feel very strongly for them कि उनको ये सब मिलना चाहिए, otherwise मतलब डेवलपमेंट का कोई चांस ही नहीं है. वो लोग वहाँ पे ही रहते हैं. उनका पूरा जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म एंड ट्रैक्स पे डिपेंडेंट है. जब ये ऐसे कोविड जैसे टाइम हो रहा है तभी now they are jobless. Yes, now many people are jobless. Daily wages का तो कुछ है ही नहीं. मतलब क्या करेंगे वो लोग तो काफी लॉस में जा रहे हैं. So this is the nice thing कि तुझे इतना अच्छा चेंजेस लाना है. एंड जब भी तू ऐसा कुछ करेगी एजुकेशन का तो प्लीज मुझे भी कॉल आउट कर. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट क्योंकि आई ऑल्सो वांट द सेम. यहाँ पे मुंबई में भी काफी है ऐसा. लाइक लोकल ट्रेन्स पे तुम देख सकते हो या स्टेशन पे भी कॉलेजेस के बाहर भी यू कैन सी छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही आके ये दे दो. एंड व्हेन वी ऑफर देम फूड दे डोंट वांट फूड. उन्हें सिर्फ पैसा ही चाहिए होता. तो कहीं ना कहीं चाहिए. हाँ, तो कहीं ना कहीं आई थिंक कि ये उनका नहीं है. देयर इज समवन एल्स जो उनको पुश करता है ये सब चीजें. क्योंकि इन बच्चों को तो क्या खाना दे दो बस हो गया उन्हें, है ना. पर वो पैसे नहीं लेते कभी भी. उन्हें फूड पैसे ही लेते. उन्हें फूड ऑफर करो तो नहीं लेते. एंड इट्स वेरी बैड कि हम उन्हें पुश करें नहीं है हमारे पास पैसे. तो आई आल्सो they want to understand this. It's long time investment education, but उनके लिए तो primary target is पैसा. तो ये प्रोजेक्ट पे तो डेफिनेटली आई विल वर्क विथ यू क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं चाहिए कि मैं मतलब उन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं. लाइक एक अच्छा एजुकेशन उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो वो ये सब करेंगे ही नहीं शायद. Yes. So let's jump on your personal life, Shweta. Tell us something about yourself. What you like, your hobbies. Okay, I like to travel. वो तो तुम्हारे feed से मालूम पड़ जाता है. Photography. And in this time I enjoy cooking also. Okay, did you cook anything during this pandemic? Yeah, I did. What? I baked cakes. Wow. Different cakes. I'm taking tutorials from YouTube. Output is which, good. like Okay. Cake ka output. It's average. Okay. So thank you so much, Shweta, coming to my show and be my guest. Being a camera freak person, you came up and you made this so amazing episode. Thank you so much, Shweta. Thank you for having me. It was pleasure. Meet with me